फिर शुरू से मार्केटिंग का शौक भी था, तो हमने कहा चले MBA मार्केटिंग में करते हैं। यार ये रैपिड फायर राउंड है भाई, अच्छी डिप्लोमेसी नहीं चलती, एक जवाब देना है और टैलेंट पसंद है। जो रूफी लेक ड्राइव वाली, अगर आपका उस तरफ आना हो वैसे आप और उस दिन हम कोई ब्रांड मैनेजर नहीं थे, उस दिन हम एक शायद स्पॉट बॉय भी शायद बने हुए थे, उनको सूप वूप हम ला के दे रहे थे कि भाई। Assalamu alaikum everyone, this is Sohaib Hassan, Co-Founder BMLH, and here we are back again with another episode of BMLH Studio, the Marketeers Podcast. Today we are having an amazing guest with us. हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि आपकी कभी अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो और आपको कभी डॉक्टर के पास या मेडिसिन लेने जाना पड़े. But today, if dua doesn't work out, so we have Mr. DVAGO from BMLH group with us today, and his name is Arsalan Islam. Arsalan, welcome to BMLH Studio. Thank you so much, Sohaib, for having me. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, बेहतरीन. Arsalan भाई, people would like to know more about yourself. हम बताएं इससे पहले आप खुद अपने बारे में बताना शुरू करें. So, like you mentioned, I'm Arsalan Islam, Head of Marketing for DVAGO. Been a long journey of 13 to 14 years of experience. Interestingly, लगते तो नहीं हैं आप? Sorry? इतने बड़े लगते तो नहीं है. वो पानी पी लिया था तो उससे जरा उम्र रुक गई. सही है. ये कॉम्प्लीमेंट कॉलेज के ज़मानों में भी आता था, उस वक्त हम जरा कर रहे थे तो लड़कियां समझती थी यार ये इतने बड़े तो नहीं है. सही. So we could cruise through. Anyhow, before becoming a marketeer, I was an investment banker. I did my bachelor's economics finance for working with the Royal Bank of Scotland. But फिर उसके बाद वो आपकी पहली जॉब थी? यार that wasn't a job basically. I was doing an internship over there. ठीक है. और बस बैचलर्स एंड मोमेंट पे ही था. तो बैचलर्स ख़त्म हुआ, CBM से हमने अपना बैचलर्स किया. और वी रियलाइज के मार्केट में तो आगे CA भी बैठे हुए हैं, लम्स के ग्रेजुएट भी बैठे हुए हैं, फॉरेन ग्रेड भी बैठा हुआ है. तो फाइनेंस की फील्ड तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है. तो और फिर शुरू से मार्केटिंग का शौक भी था, तो हमने कहा चले MBA मार्केटिंग में करते हैं. एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट वाज कि इफ आई वुड हैव डन MBA इन फाइनेंस, तो कोर्सेज हम वही कर रहे होते जो हमारे बैचलर्स में थे. बड़ा एक्सटेंसिव हमारा बैचलर्स का कोर्स था. So I opt for MBA marketing from CBM. In the meanwhile, I pursued career with GSK. GSK was my first job. And हमने कहा जी वो 4 P's का एक P जो है ना प्रमोशन, वो सीखने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जाना पड़ेगा. बिल्कुल सही है. So I think that was a very big decision for me, from a client side, a brand side, going to the agency. Anyhow, I was sorted कि करना क्या है. So spent some time with advertising agencies, learned about ATL, BTL, and media. Then came back to the business side, joined Gul Ahmed. और बस फिर उसके बाद से I think I've been in the retail for past 7 to 8 years. And alhamdulillah, it's been a wonderful experience. Zabardast. So from investment banking to pharmaceuticals to retail, और उसमें भी brands like Gul Ahmed और फिर Interwood and now DVAGO. Yeah. तो आपने कभी सोचा था कि आप BMLH स्टूडियो में भी आएंगे? नहीं. I think it's a privilege you guys invited me over here, and I've been associated with BMLH from very early time. Yeah. So I've seen how it grew, how it made its presence among the market leaders, who are heading some great brands. And I think they all know about BMLH and how BMLH is making its way in connecting the professionals with each other. Because like I mentioned, I do have an advertising background. So advertising के अंदर भी हम client service के अंदर थे. So client service was all about relationship management. And I think relationship management, not just in one field, but in overall life, plays a very crucial part. How you carry your relationships in your professional and in your personal life. Agreed. So BMLH has, I think, made its way
not just in Karachi but in Dubai as well. Yeah. But thank you so much for the kind compliment. वैसे हम लोग तारीफें एंड में कराते हैं, लेकिन अरसलान भाई has been very humble and very kind personality. So thank you so much, और we are really glad you have taken time out Thank you. For this podcast. तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. As a person and as a professional, आपको ज़िंदगी में challenges पसंद है या humor? Challenges पसंद है या Humor, मजाक मस्ती? चैलेंज ऐसे हो जाते हैं कि वो मजाक बन जाते हैं. चलें, तो कोई ऐसी स्टोरी सुनाएं कि कोई ऐसा चैलेंज जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आया और फिर लेटर ऑन यू माइट हैव रियलाइज्ड कि यार ये तो मजाक था, उस वक्त आपको शायद आइडिया नहीं आ रहा हो. I think रोजाना, so life is full of unplanned, I would say unplanned आपकी outcomes होते हैं. ठीक है, आपने प्लान किसी और तरह से किया होता है, चीज़ें किसी और तरह से किसी और डायरेक्शन में जा रही होती हैं, एंड उस वक्त आई थिंक आप अपने आप को भी टेस्ट कर रहे होते हो कि आपकी नर्व्स कितनी स्ट्रांग है, कि आप उनको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हो. तो देयर हैड बीन मैनी चैलेंजेस. आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, आउटकम कुछ और हो गया, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसमें नर्व्स पे कंट्रोल रखा, बताया नहीं किसी को कि अंदर क्या चल रहा है, स्टेट कूल काम. तो हो गया, वो वाली जॉब चेंज हो गई है ना अब. हाँ आप तो बता सकते हैं. बड़ा फनी नहीं, बड़ा चैलेंजिंग इंसिडेंट था. सो आई जॉइन दवागो, करंटली बता देता हूँ. अच्छा. सो आई जॉइन दवागो इन लास्ट June 24th. और ज्वाइन किया है तो बिजनेस की तरफ से प्रेशर आ गया जी कि ऐप लॉन्च करनी है. अब फार्मा मेरे लिए भी एक नया था, बिकॉज आई हैव बीन इन द फैशन, इन द लाइफस्टाइल. अच्छा जी, चलता किस तरह से है, समझना इसको किस तरह से. एनी हाउ करा के कोई 1 महीने के अंदर हमने एक मिनी कैंपेन लॉन्च कर दी. अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए. 1 महीने बाद हमारी बोर्ड मीटिंग थी. My CEO was with me and we were just presenting to the board, and my CEO was constantly 2-3 मीटिंग्स में he was like कि हम बहुत मिनिमल मार्केटिंग कर रहे हैं एंड ऐप डाउनलोड्स आ रहे हैं एंड द बिजनेस इज ग्रोइंग. एंड हम उनको बार बार करेंगे सर देयर इज नथिंग एज फ्री नहीं है, पेड कैंपेन चल रही है, इसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं. एनी हाउ अब वो बेंचमार्क सेट होना शुरू हो गया, यार ये तो ऑर्गेनिकली हम ग्रो कर रहे हैं और पेड का तो इसके अंदर कोई वो नहीं आ रहा है. जबरदस्त. अब वो एक चैलेंज बिल्ड हो गया कि अच्छा अब आगे कैंपेन लॉन्च करनी है. एनी हाउ प्रोबेशनरी पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ था. प्रोबेशन भी नहीं हुआ था कंप्लीट अभी, ठीक है. लेकिन मजे की चीज़ ये थी कि आई वाज परमानेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. सही है. तो खैर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी किस तरह से क्या चल रहा है, डायनामिक्स बिल्कुल अलग है. रिटेल के अच्छा, सिंस इन यूर इन रिटेल बिजनेस एंड यूर प्रोड्यूसिंग ऑफ योर ओन गुड्स, उसके चैलेंजेस बिल्कुल एक अलग है. हाउएवर व्हेन यू आर अ रीसेलर, उस वक्त एक चैलेंज अलग होता है. आपके पास मार्जिन बहुत कम होते हैं. प्रोडक्शन में तो ये आपके मार्जिन डबल ट्रिपल डिजिट के अंदर होते हैं, रीसेलिंग के अंदर नहीं होते. सॉरी, दवागो बहुत बिक रहा है, ऐसे ना बोले यार. हाँ, वो आई थिंक इट हैज कोविड प्लेड इट्स पार्ट. आई वुड से कोविड ने पार्ट प्ले किया. जिस वक्त आई गेट टू हेयर द स्टोरीज के प्रमोशन फार्मेसी में चले जाओ तो कोविड के दौरान तो वो तो 3 कस्टमर जब अंदर होते थे बाहर लाइनों में लग के मैंने दवा ली. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. कम मार्जिन कहाँ से कम होगा यार, और कम भी होगा तो वॉल्यूम की वजह से अच्छा खासा आ रहा होगा. आप जैसे कस्टमर्स की वजह से हम कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. यार ऐसी चीज का कस्टमर ना बनाओ भाई. लेकिन नहीं यार, अमेजिंग वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग, सो हेड्स ऑफ टू यू गाइज. मतलब मुझे लगता है कि कराची में क्योंकि आई हैव बीन टू थाईलैंड मैनी टाइम्स, वहाँ पे जिस तरह 7-Eleven आपको हर गली के मतलब एक लिटरली इफ द रोड इज गोइंग तो एक इस तरफ भी होगा एक इस तरफ भी होगा. बिल्कुल 11 गुलिस्तान जौहर. तो मुझे वहाँ पे एक जो रूफी लेक ड्राइव वाली, अगर आपका उस तरफ आना हो, वैसे आप बड़े आदमी, we only have 9 outlets in Johor only. Yeah, so हर थोड़े मेरे ख्याल में if I'm not wrong hardly 1 से 2 किलोमीटर जी पे और एक उसके बिल्कुल सामने है. तो आप उस तरफ भी आते हैं पुल के? मैं पुल के उस पार ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सही. पहाड़ी का बंदा हूँ मैं बेसिकली. सही है.
तो नहीं यार, अमेजिंग स्टोरी। तो सॉरी, आप कंप्लीट करें तो उसका रिजल्ट आपका। सबसे इंटरेस्टिंग चीज सुहेब, यू वुड बी बॉगल, हेयर कैंपेन हम लोगों ने अपनी बड़ी कैंपेन, थीमेटिक कैंपेन बनाई। एडकॉम वाज आवर एजेंसी, कॉन्सेप्ट आए बनाए हमने, शूट किया हमने, बड़ा मजे की कम्युनिकेशन निकली। ऑपरेशंस पीछे सॉर्टेड नहीं था कि हम, क्योंकि आई वाज सॉर्टेड कि यार आप जिस वक्त बिग बैंक के साथ जाएंगे ना तो कस्टमर आएगा, ठीक है, आपको अपनी इन्वेंट्री भी पूरी रखनी है, आपको अपने ऑपरेशंस भी सॉर्टेड रखने हैं, यू नीड, आप पूछ नहीं कर सकते। एनी हाउ हमने उसमें टाइम लिया। मार्च के अंदर हमने अपनी कैंपेन लॉन्च की, 7 मार्च को। 5 मार्च को हमारी नई वेबसाइट डिप्लॉय हुई है और नई ऐप डिप्लॉय हुई है। ये ज़बरदस्त नहीं था, दैट वाज अ फेलियर। क्योंकि जब वेब जब डिप्लॉय होती है तो देयर इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी गिरती है। बिल्कुल ठीक। एंड उसका तकरीबन कोई 3 से 4 महीने का इम्पैक्ट होता है, वो दोबारा जाके स्टेबल होती है। अब नाउ इमेजिन आपने फुल फनल कैंपेन खोल दी है, ट्रैफिक आ रही है, आपने क्या अपनी वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट चेंज किया था हमने, तो वही प्लेटफॉर्म हमने चेंज किया था, वी वर ऑन शॉपिफाई एंड आप जबरदस्त काम तो आप करते हैं ना, फिर आपने प्लेटफॉर्म भी उसी वक्त चेंज करना है जब आपने कैंपेन लेकर ये उस वक्त होता है जिस वक्त बिजनेस एक अंतिम किस्म प्रेशर डाल रहा होता है कि यार ये चीज करनी है, एंड देन यू आर टेलिंग यू नो दिस इज नॉट द राइट टाइम। एनी हाउ उसमें फ्रॉम पीपल लाइक अरसलान भाई वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार प्रेशर लिया जाएगा ना, आप जैसे लोग तो प्रेशर देने के लिए होता है, एक हद तक होता है प्रेशर। लेकिन आई थिंक उसमें हमने वी प्लेड वेरी विटी। हमें उसमें रादर देन हम शुरू से हम कन्वर्जन कैंपेन्स पे जाते, हमने ट्रैफिक बिल्ड की, हमने सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड की ताकि महीना जो हमें लगेगा अपने पीछे बैक लिंकिंग्स को बेहतर करने के लिए तो एटलीस्ट हमारे पास ट्रैफिक अवेलेबल हो, फिर उसको हम प्रॉस्पेक्टिंग ओपन करके और कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। तो आई स्टिल रिमेंबर वो जो 2 से 3 महीने थे, ई कॉमर्स तो एक पार्ट था, लेकिन उसी के साथ साथ लास्ट ईयर ओनली वी ओपन 28 आउटलेट्स, 28 आउटलेट्स पैन पाकिस्तान ओपन करना एंड साथ डिजिटल संभालना बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन बट नाउ आई लुक बैक तो आई से कि यार अमेजिंग जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कराया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त। सो आफ्टर सो मच ऑफ सीरियस डिस्कशन लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स रैपिड फायर राउंड। थोड़ा सा फन एलिमेंट है बॉस। मैं आपसे 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करूँगा। यू नीड टू बी एज क्विक एंड एज इम्प्रॉम्प्टू एज यू कैन बी। सो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेवरेट एड कैंपेन सो फार। मिस्टर ब्लू इन गुल अहमद। ज़बरदस्त। योर फेवरेट मार्केटिंग जिंगल, any jingle that you can recall of? हर चीज़ मिज़ान में अच्छी लगती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। फेवरेट मार्केटिंग जार्गन? व्हाई नॉट मेरी जान। व्हाई नॉट मेरी जान, चलो। लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो आप अपनी मार्केटिंग, जिस तरह इंग्लिश उर्दू एक लैंग्वेजेस है, मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज, तो आप कोई एक वर्ड जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद हो, जो आप कहते हो ये चीज़ मेरे अजीज़। ये चीज़ मेरे अजीज़, चले। So now one of the difficult questions, your best boss so far in your entire career? बाकियों को नाराज करना पड़ेगा आपको। I think I've been privileged to have multiple। यार ये रैपिड फायर राउंड है भाई, अच्छी डिप्लोमेसी नहीं चलती, एक जवाब देना है। साकिब यूनुस, he is now the CEO of Khadi। और वो आपके बॉस कहाँ पे थे? He was my retail head for Gul Ahmad ITS। So your best employer has been Gul Ahmad? Very tough but very learned a lot। सही है, क्योंकि अभी दवागो वाले भी देख रहे हैं ना, सही है ना, दवागो वाले भी देख तो रहे, सही है। तो अच्छा, सो अरसलान भाई, यू हैव वर्कड ऑन वेरियस काइंड्स एंड आपने टेक्सटाइल में इतना ज़बरदस्त काम किया। आई एम श्योर आपने कितने सारे प्रोडक्शन शूट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली रिटेल टेक्सटाइल में तो काफ़ी ज़्यादा हर 2-3 महीने के बाद एक कैंपेन आई जाती है। तो एनी ऑफ द फनीएस्ट मोमेंट दैट यू कैन रिकॉल ऑफ, जो आपके साथ जैसे होता है ना जब हम प्रोडक्शन पे होते हैं तो पीछे एक इंसान अपनी एक अलग दुनिया में होता है, कोई ऐसी मज़ेदार स्टोरी जो आपको याद हो? हम 2018 की बात है।
2018 की बात है, हम शूट पे गए हुए थे थाईलैंड, और थाईलैंड पसंद है। बांग्ला रोड। सही सही। तो हम शूट पे गए हुए थे, और 3 दिन का शूट था, जिसमें 2 फॉरेन मॉडल थे, एक उसमें यूक्रेनियन था, मिस्टर ब्लू के शूट के ऊपर मेंस कलेक्शन। लोकल से हमारे साथ एक टॉप मॉडल थे, आई एम श्योर नाम तो नहीं ले सकता। तो those international models were so good with their postures, everything, के 2 दिन जो हमारा लोकल मॉडल था वो तो बीमार रहा, उसको बुखार चढ़ा हुआ था, वो कमरे से नहीं निकल पा रहा था। और उस दिन हम कोई ब्रांड मैनेजर नहीं थे, उस दिन हम एक शायद स्पॉट बॉय भी शायद बने हुए थे, कि उनको सूप वूप हम ला के देते थे कि भाई पैसा लगा हुआ है, इसी तरह ही अपने पैरों के ऊपर खड़ा होते और शूट हम निकाल लें। अग्री। इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ हमारा 2 दिन का शूट था, 2 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, और जो लोकल था उसके साथ हमारे 3 दिन का था। 2 दिन वो मॉडल्स बाद गायब हुए, तीसरे दिन वो अपने पैरों पे खड़े हुए थे, वो तो हीरो थे। और कहाँ बुखार, कहाँ नज़ला, कहाँ जुकाम। तो मैं और मेरे कैटेगरी मैनेजर, कैटेगरी हेड जो था, हम लोग हंस रहे थे कि यार ये हमारा फ़र्क है एक लोकल और इंटरनेशनल में, कि वो फनी इस तरह से था कि आपने प्लान एक अपने तरीके से किया हुआ था, बट द प्लान डिडंट गो अकॉर्डिंगली, एंड इट वाज नॉट इन योर कंट्रोल एज वेल। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक वो ओवरऑल वाइब, अगर मैं वो 4-5 दिन की देखता हूँ, जो चैलेंजेस हमें वहां पर आए थे, क्योंकि आप एक फॉरेन जगह के ऊपर थे, लोकेशंस आपने लॉक की हुई है, पेमेंट्स आपने एडवांस के अंदर की हुई है, तो वो उसको जिस तरह सिचुएशन हम लोगों ने मैनेज की थी, वो एक आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो होता अक्सर ये है ना कि जैसे आप उस वक्त ब्रांड मैनेजर थे, तो यू मस्ट बी रिपोर्टिंग इनटू सम हेड ऑफ मार्केटिंग या हेड ऑफ ब्रांड्स, तो ऐसा तो नहीं होता कि पूरी की पूरी आपके ऊपर आ गई हो यार ये क्या सीन है, हायर कर लिया? सो नहीं, सो तो लग रहा था फनी पार्ट शायद वो वाला होगा। नहीं, फिर आई थिंक वो मैनेज हम लोगों ने किया वहाँ पे, क्योंकि बॉसेस तो यहीं पे थे। सही है। बॉसेस को तो हमने भनक भी नहीं पड़ने दी। सही है। अब तो पड़ गई भनक, वो अब उनसे कांटेक्ट में भी नहीं है ना। सही। तो ये था। चले जबरदस्त। तो अरसलान भाई, मूविंग ऑन, मैं आपको अब अगले क्वेश्चन में कुछ टैगलाइंस दूंगा, ठीक है? उसकी 2-3 चीज़ें होंगी, या तो अगर मैं आपको इंग्लिश में टैगलाइन दे रहा हूँ तो आपको उसकी उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या वरना अगर आपको उर्दू में टैगलाइन मिल रही है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट, ठीक है? या वरना मैं आपको टैगलाइन दूंगा और आपको उसके ब्रांड का रिकॉल करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कि अब आपको ब्रांड का रिकॉल करना है। सही है जी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैं ते होंडा ही लेसा। होंडा नहीं, इसकी इंग्लिश आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ना, ये तो फिर मैं आपको टैगलाइन ऐसी वाली, आई विल बाय होंडा, यू विल बाय होंडा ओनली। यार है तो पार है। व्हेन योर फ्रेंड इज हियर यू डोंट नीड टू वरी। गुड। फिंगर लिकिंग गुड। काटते जाओ उंगली। यार यस, आप रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं यार, आपने सवाल पूछा था। चले यार, आई एम लविंग इट। मैं तो प्यार करते ही जा रहा हूँ। यार वैसे लविंग का प्यार ही होता है, वो तो और क्या गेम ऑन है आपका। कोई और आड़ू तरीन टैगलाइन कौन सी हो सकती है? तो आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मैं सोच रहा हूँ चले हम ये ताहा भाई के असल में गेम ये है, आपको आवाज आ रही है पीछे से पेप्सी की। ताहा भाई ने मतलब पेप्सी ताहा का क्लाइंट रह चुका है ना असल में। भाई वो वाहिद ब्रांड है जिसने शेयर बदलवा दिया। क्लाइंट तो वो होते हैं जो इधर भी रहते हैं, क्लाइंट तो हम भी थे, माना इन्होंने कभी भी नहीं। मसला ये छोटे बजट पे हमने काम किया तो ये कभी मानेंगे नहीं। बजट का भी अभी आपसे पूछते हैं वैसे कि बड़ी एजेंसी के साथ छोटे बजट पे काम करना कैसे रहता है, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन और कोई मजेदार टैगलाइन, जस्ट डू इट, बस कर जाओ। चले अब आपको ब्रांड रिकॉल करना है, सीधी सादी खुशी है। सुपर, क्या बात है यार, ये होते हैं मार्केटर्स ना, मतलब अपने ब्रांड के अलावा भी हर ब्रांड पे नजर, और खासतौर से उस पे जहाँ पे इनका अगला मूव हो सकता है। ठीक है, नहीं जाएंगे आप EBM? मैं बचपन में EBM की फैक्ट्री गया था, हाँ। और आज तक याद है। एंड आफ्टर बिकमिंग अ मार्केटर इट हैज बीन इंस्पिरेशन। आई थिंक उन्होंने जिस तरह से अपना ब्रांड बिल्ड किया है, आमिना सही सुन रही, और वो आई थिंक उन्होंने पेप्सी के अंदर जाके फिर पेप्सी का गेम उठा दिया। हाँ। तो आई एम अ फैन ऑफ हर।
क्या बात है। चलें, ये वाला भाई, ये वाला जब आप कर रहे हो ना एडिटर्स जो भी हमारे, तो ये काट के खास तौर से लिंक्डइन पे मैं सामना सईद को टैग करके ये वाला पार्ट जो है ज़रूर डाल रहा है। चलें जी, मूविंग ऑन। अरसलान भाई, आपका इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है, यू मस्ट हैव सीन वेरियस ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। आपको क्या लगता है वेयर फ्यूचर इज हेडिंग टुवर्ड्स, व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेंड्स दैट वी नीड टू अपस्किल आवर गेम ऑन? I think it's okay. I'm glad you asked this question. ये ट्रेंड बनाने के चक्कर में ना, आई थिंक हम लोग अपनी कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स को भूल चुके हैं जो पुराने हमारे थे. आई स्टिल रिमेम्बर के पुराने एड्स बनते थे, टू द पॉइंट होते थे. कोई गाना बजाना नहीं होता था, कोई नाच गाना नहीं होता था, टू द पॉइंट. आई रिमेम्बर कि कैंडी का एड था, दैट वाज अराउंड द प्रोडक्ट ओनली. उसमें कोई हमारी वो बिग आइडिया वाली कहानियां, वो चीज़ें नहीं थी. लाडो मार का साबुन, बहुत सारे आपके व्यूअर्स हैं तो नाम भी नहीं सुने होंगे. ईद के ऊपर इनके ऐड आते थे कि लाडो साबुन बनाने वालों की जाने से आपको ईद मुबारक. गाय सोप का भी आता? गाय सोप वाज माय नेबर सामने, तो गाय सोप हो गया. तो आई थिंक ट्रेंड्स बनाने के चक्कर में हम लोग वी बिकम अ फॉलोअर, नॉट द ट्रेंड सेटर. हम लोग एक ट्रेंड सेटर थे. हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ट्रेंड सेटर थी. हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ट्रेंड सेटर थी. हमारे जो लिरिसिस्ट थे, कॉपी राइटर्स थे, हमारे एडवर्टाइजिंग गुरुज जो थे पुराने, आई थिंक वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में. तो ट्रेंड doesn't last forever. It just stays only for a limited time only. But I think we need to reflect back to our society. And यानी कि जो आपका कोर है उस पर आपकी फाउंडेशंस बड़ी सॉलिड होती हैं. ज़बरदस्त. तो अरसलान भाई, आई रियली लाइक योर नैरेटिव ऑन द कैंपेन बिट कि हमें अपने कोर से जो है वो करीब रहना चाहिए. सो एनी पर्टिकुलर कैंपेन जो रिसेंटली विच वाज आई कैचिंग फॉर यू, जिसको आप याद कर सकें और आपको उसमें क्या पसंद आया, या कोई कैंपेन जो ना पसंद आई हो, रीसेंट कैंपेन्स? रीसेंट में 2 कैंपेन्स रिकॉल करूँगा. एक तो KFC की जो भी कैंपेन आई थी. ज़बरदस्त. आपको फिंगर लिकिंग गुड से याद तो नहीं आ गई? नहीं, फिंगर लिकिंग गुड से तो नहीं याद आई. बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी अग्रेसिव and a very forward thinking move made by KFC. कि उन्होंने जिस तरह से एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसकी अपनी कम्युनिकेशन सेट हुई हुई है और उसके अंदर वो एक बिल्कुल लोकल टच उसमें लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक एक वो बड़ी ज़बरदस्त थी. सेकेंडली जो थी वो पेप्सी की वाई नॉट मेरी जान. आई थिंक वो लाइन जो कॉइन की है, वो उसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आई थिंक वो ही डिफरेंस हमें नजर आया है एज वी ग्रू कोका कोला के अंदर एंड पेप्सी के अंदर. कि कोका कोला हैज बीन कंसिस्टेंट, हाउएवर पेप्सी हैज बीन चेंजिंग देयर नैरेटिव आफ्टर एवरी 9-10 years एंड सो ऑन. वो कहते हैं जी फ्रेशनेस एक रहती है, हाउएवर लेकिन आई थिंक ये एक जो लाइन थी, इट गोज वेल विद द ब्रांड पर्सोना, विद योर प्रोडक्ट कंजम्पशन इज वेल. हैट्स ऑफ. नहीं, ज़बरदस्त. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैंपेन्स. अच्छा जी, तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा एक क्वेश्चन है या सेगमेंट आप इसको कह सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली मिस्ट्री राउंड. तो मिस्ट्री ये है कि देयर इज़ अ बॉल इन फ्रंट ऑफ यू. आपको कोई भी 2 चिट्स अपनी पसंद से आप इसमें से उठा लें. क्या आप एक और उठा लें. ठीक है, ये वाटर कूलर आपका हुआ. कौन से 2 ब्रांड्स हैं? कोलगेट और लक्स. ठीक है. सो इफ यू वर टू को ब्रांड आउट ऑफ दीज 2 ब्रांड्स, क्या कैंपेन करेंगे आप? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कैसा दिया? हम दुआ गो हैं आपकी खूबसूरती के लिए और हम दुआ गो हैं आपके मुंह की बदबू के लिए. क्या आपके प्यार करने वाले आपके साथ आपसे प्यार. नेक्स्ट लेवल भाई. हेड्स ऑफ टू. अच्छा, पहले ना मैं थोड़ा सा पर्सनल ले गया, मैंने कहा शायद आप मेरी बात कर रहे हैं तो, लेकिन ज़बरदस्त यार. क्या मेरे ख्याल में दवागो ने, खैर अब बोलना नहीं चाहिए, अभी तो प्रमोशन कर दी,
वरना मैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर देता कि प्रमोशन और अप्रेजल लगा दें, मतलब जिस ब्रांड की बात भी नहीं थी आपने वो भी इंटीग्रेट कर दिया। वैसे गिव अवेज का भी थैंक यू यार। थैंक यू, तो आप इस्तेमाल में लेकर आएगा, हमें खुशी होगी। बिल्कुल, हम आपको इसकी वजह से हम आपके दुआ को बन जाएंगे। ज़बरदस्त। तो अच्छा जी, तो अरसलान भाई आपका काफ़ी ज़्यादा मीडिया, अभी हम लोग फनल अप्रोच की बात कर रहे थे, आई एम श्योर आपका कन्वेंशनल मीडिया का भी बड़ा ज़बरदस्त सॉलिड एक्सपीरियंस रहा है। सो एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू फील लाइक कि यार मीडिया के ये कुछ ट्रेंड्स हैं जिस पे मार्केटर्स को, इफ़ देयर टीजी इज़ देयर तो ऑब्वियसली टीजी के बगैर तो गेम चलेगा नहीं, बट if their TG is there, so they should capitalize on it. So what are some of the media receptivity touch points that we should capitalize on? आई थिंक अब तो डिजिटल का दौर है, ठीक है, लेकिन डिजिटल का चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि उसकी लाइफ बहुत कम है। You don't tend to remember each and everything. I am always a believer of conventional media. Digital always augments your primary media, your conventional media. Yep. ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने conventional media को compromise कर जाओ and then you completely put all your eggs in the one one basket, या अपने पूरे stakes आप digital के ऊपर कर लो। Because in the experience, convention, ऐसी companies के साथ भी काम किया कि जिनका फोकस कन्वेंशन के ऊपर होता था, और फिर ऐसी कंपनी के साथ भी किया कि जो बिल्कुल ROI ड्रिवन है, वेरी न्यूक्लियर अप्रोच, कि स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं आए, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलें, ROI की बजाय ROE के ऊपर फोकस करें। बट कन्वेंशन की पावर एक अलग है, व्हेन यू आर ऑन टीवी, व्हेन यू आर ऑन आउटडोर, व्हेन यू आर ऑन रेडियो, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई और पावर नहीं है। आई रिमेंबर गुल अहमद के अंदर हम लोग की अप टू 70% ऑफ की कैंपेन्स लगती थी, एंड उससे 2 दिन पहले शहर हम पूरा भर देते थे कराची का, बिलबोर्ड, स्ट्रीमर, टीवी, रेडियो, प्रिंट, SMSs। तो डिजिटल तो उसके बहुत बाद आया था, जब फ्लरिश करना शुरू किया था 2018-19 के अंदर। हाउएवर ग्रोथ दी बिल्कुल डिजिटल ने, लेकिन उसी वक्त फिर हमने टीवी को और एक्सप्लोर किया। उससे पहले हमारी इतनी ज़्यादा हम एक्टिव नहीं थे टीवी के ऊपर, लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड एक्टिवेटिंग टीवी तो बहुत रिजल्ट्स आए मज़े के। एंड देन फिर मैनेजमेंट ने हमें बजट्स और दिए कि अच्छा नहीं, टीवी आप लोग और चलाएं। तो यू कांट पिक एंड चूज़ कि आप, हाँ, हर ब्रांड का एक बजट होता है। अब अगर मैं ये कहूँ जी आपका साल का है ही 30-40 मिलियन का बजट, और आप कहें जी मुझे टीवी भी करना है, आउटडोर भी करना है, सो दैट वोंट बी अ गुड अप्रोच। देन फिर आप बहुत कैलकुलेटेड चलो यार। अच्छा, फिर आप पैटर्न्स देखो, ट्रेंड्स देखो, अपने सीजन देखो अपने बिजनेस के अंदर, उस वक्त आई थिंक पैसा लगाएं व्हेन द पर्चर इज ओपन। सॉलिड एग्जांपल है, आई थिंक वी टेक फ्रॉम FMCG ब्रांड्स इज वेल। ये लोग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं 25th ऑफ द मंथ से लेके आगे 5th to 10th ऑफ द मंथ, बाइंग साइकिल आ गया, एंड उस वक्त गेम सारा आपका रिकॉल का आदत है कि टॉप ऑफ माइंड आपको उस वक्त हो। अग्री। तो आई थिंक जिस इंडस्ट्री में आप और जो बजट्स हैं आपके, उसको देखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। बट इफ द रूम इज अवेलेबल तो कन्वेंशन मीडिया तो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यू आर नॉट डिनाइंग द पावर ऑफ not at all, not at all. So for instance, you live in Johor and your office is in? My office is in Korangi Creek. Your office is in Korangi Creek. तो आप now just imagine आपके ऑफिस से आपके घर के बीच में एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, वो 15 दिन के लिए चाहते हुए और ना चाहते हुए आप देख रहे हो, आपकी रिकॉल क्या होगी? जेंजी तो देख ही नहीं रही ना, अगर आप जेंजी भी तो उसी रोड से गुजर रही है, वो जो हाल में थोड़ी गुजर के जाती है। हम खाली जो है ना वो डिजिटल देखें, वो चाहते ही नहीं है, वो बिलबोर्ड पे आंखें छुपा लेंगे। सो फेसबुक की रिसर्च है, फेसबुक कहता है कि फेसबुक की इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ एन आईफिल टावर, एंड उसका भी कुछ मल्टीपल जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन अ थंब स्क्रॉलिंग, नॉट जस्ट योर्स बट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। रिटेंशन क्या रहेगी, जिसमें कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। 2 सेकंड से ज़्यादा, 3 सेकंड से ज़्यादा आप एक जगह रुकते नहीं हो अनलेस कोई खूबसूरत चेहरा ना हो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा हो। तो लेकिन हमने 2 बार बगैर खूबसूरत चेहरे के भी यार, वो स्टोरी थी, 5 मिनट, वो स्टोरी थी, तो स्टोरी वो कैप्टिवेटिंग स्टोरी थी। स्टोरी टेलिंग मानते हैं ना आप? बिल्कुल,
बिल्कुल जरूरी तो यहीं पे तो स्टोरी टेलिंग इज ऑब्वियसली कंटेंट का ही पार्ट है ना, तो बिल्कुल किंग तो रहेगा ना। बिल्कुल, उस पर तो कोई दो शक है ही नहीं। आपकी तरह सॉलिड। आपकी तरह सॉलिड। चलें, जबरदस्त। तो अच्छा, तो अरसलान भाई, आपका बड़ा ज़बरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप्स का भी। तो हाउ कैन यू प्लीज शेड बिट ऑफ लाइट ऑन द ग्रोथ मॉडल कि अगर स्टार्टअप में आपके पास लिमिटेड बजट्स हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि वो। सोएब, स्टार्टअप के अंदर ना आई थिंक सबसे बड़ी जो एक गलती करते हैं, गलती तो नहीं, एनी हाउ हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, दे गो आउट ऑन द बर्न आउट मॉडल। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, आपको टॉप लाइन अचीव करनी होती है जिसको जीएमवी कहते हैं, लेकिन व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपकी एनएमवी क्या आ रही है और आपकी उसके अंदर भी मार्जिन्स क्या है। तो इट्स ओके आप बर्स्ट मारें, लेकिन फिर उस बर्स्ट को कंटिन्यू नहीं रखें। देन यू फोकस ऑन कि अच्छा, जो आपने कैंपेन लॉन्च की थी उसके बाद रिजल्ट क्या आया, उसका एनालिसिस करें, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी स्ट्रेटजी फेज 2 के अंदर इम्प्लीमेंट करें। जबरदस्त। सो स्टार्टअप्स के अंदर ना, स्टार्टअप्स की एक हम ये सुनते हैं कि अच्छा इतने डाउनलोड्स आ गए, डाउनलोड्स मेरे भी बहुत ज़्यादा है बीइंग इन दवागो, बट व्हाट रियली मैटर्स इज कि उसके अंदर एक्टिव यूजर्स कितने हैं, उसमें से परचेजर्स कितने हैं, उसमें से रिपीट परचेजर्स कितने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें बिजनेस की वायबिलिटी को देखना होता है। एंड आई थिंक मूविंग टू दवागो वाज वन ऑफ द राइट डिसीजंस आई टुक इन माय करियर एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आके ना मुझे वो आरओई वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। यहाँ पर आके मुझे 2 टोपियां साथ पहननी पड़ रही थी, एक मार्केटियर की और एक बिजनेसमैन की। एंड अक्सर ये होता था कि वो बिजनेसमैन की टोपी पहनते हुए ना मेरा जो एक मार्केटियर का दिल था वो थोड़ा रुकना शुरू हो जाता था, उसको टोपी पहनानी शुरू पड़ती थी, क्योंकि अनलेस नंबर्स नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज फॉर यंग एस्पायरिंग लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स जो मार्केटर्स बनना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गो ऑन ग्राउंड, सीखो। लर्निंग कहीं से भी आ सकती है, इट्स नॉट जस्ट के इट विल कम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स ओनली और इट विल कम फ्रॉम योर जॉब ओनली। इंटरैक्ट विद पीपल, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस होगा ना, वो यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, एंड वो वाला जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जिसके अंदर वो शख्स जिसने इतना टाइम गुजार के फेलियर से भी वो निकला है एंड देन वो सक्सेस की पीक पर भी गया है। तो मीट पीपल, मेक रिलेशनशिप, लर्न फ्रॉम देम, कीप योर आइज ओपन व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और हमारे पाकिस्तान में बड़ा रूम है इनोवेशन का, सो आई एम बिग फैन ऑफ, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, लेकिन गोरा भी उससे बड़ा इम्प्रेस है। सही है। गोरा कहता है कि जो देसी की जुगाड़ की हरकतें हैं वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कीप योर आइज ओपन, लर्न फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीमेंट करें उसको। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट द कस्टमर, ऑलवेज थिंक अबाउट द कस्टमर। कस्टमर खुश होगा तो आपको दोबारा बिजनेस देगा। जबरदस्त। So thank you so much, Arsalan bhai, for being with us. You have been one of the founding members of BMLH, and we really respect that, and we are honored to have you. It was a great learning experience, I'm sure, for all our viewers. So thank you so much, all of our viewers. Please do subscribe to our YouTube channel and keep watching BMLH Studio. Signing off, your host for the podcast, Sohaib Hassan.